Hello students, today we are going to start chapter number 4, Disaster Management. So the first heading is, can you tell? The first question is, what events do you see in these pictures? So in picture number 1, we can say that there is a disaster which names earthquake, because in this picture we can see that there are cracks on land and some cracks on the building, and due to earthquake buildings will be destroyed and land has cracks. Okay, in picture number 2 there are cracks on land and no water in this picture, and also the tree is there is no leaves on the tree, so we can say that it is a drought. And in picture number 3, in this picture there are lots of water and rain also, so maybe it's a flood due to heavy rainfall. Now picture number 4, there are fire in the forest. Then picture number 5, there are a storm, it is a water storm. Then picture number 6, there is a volcanic eruption. Okay, so what event do you see? So all these events are there. Now question number 2, what would you have done in these situations? So we will take accurate precautions which will be guided by the National Disaster Management. Now question number 3, have you experienced such a situation yourself? And fourth one is, why do these events occur? So we will understand in this chapter all these points. So the first heading is disaster. In 1993, many people died due to the earthquake at Killori in Latur district. Okay, due to earthquake, many people died in 1993. Then second event is in 2005, when many people had lost their lives in the deluge caused by the heavy rain in Mumbai. And then next point, in July 2014, the whole village of Malin in Ambegaon Taluka of Pune district was destroyed in a matter of minutes due to a landslide. Many got buried under the heaps of soil and stone and lost their life. So in 2014, अम्बेगांव के मलिन विलेज में लैंडस्लाइड हुआ. लैंडस्लाइड मीन्स क्या होता है? लैंड्स अपने जगह से खिसक जाती है, गिर जाती है. बहुत सारा लैंड अपनी जगह से खिसक जाता है, जिसकी वजह से क्या होता है, जो भी आसपास के लोग होते हैं वो उस लैंड के नीचे या सॉइल के नीचे दब जाते हैं और अपनी जान गंवा देते हैं. देन नेक्स्ट इवेंट क्या था? इन नवंबर 2015 many people died due to the flooding caused by heavy rain in Tamil Nadu. So now we will understand what is a disaster. A sudden event that causes large scale damage to life, property and social aspect of a nation or society is called a disaster. It means अचानक से होने वाला कोई भी हादसा जो एक बड़े स्केल पे डैमेज करेगा, लाइक लोगों की जान जा सकती है, सामान जो है, लोगों का घर है, गाड़ी है, ये सब क्या होते हैं? डिस्ट्रॉय हो सकते हैं. सोशल एस्पेक्ट, कनेक्शन टूट सकता है लोगों से. तो ये सारे जो डैमेजेस हैं ये किसकी वजह से होते हैं? डिजास्टर की वजह से होते हैं. ओके, नाउ पेज नंबर 27. हाउ एंड व्हाई डू द फॉलोइंग डिजास्टर्स अकर? सो देयर आर फ्लड्स ड्यू टू हैवी रेन. रेन बहुत ज्यादा होगी तो क्या होगा? फ्लड आएंगे. देन एन अर्थक्वेक, लाइटनिंग, वोल्केनिक इरप्शन एक्सेट्रा. In the third number, there are forest fire, जंगल में आग का लगना. Then fourth one is increased risk due to heavy density of population in a limited area. Then rampant and irregular construction. कोई भी अगर हम लोग हिली एरियाज पे ज्यादा कंस्ट्रक्शन करेंगे तो भी डिजास्टर हो सकते हैं. वहाँ पे कुछ डिजास्टर नेचुरल होते हैं एंड कुछ मैन मेड होते हैं, ये हम इस चार्ट में भी समझेंगे. But the sixth point is
इकोलॉजिकल इम्बैलेंस, इकोलॉजी में जो भी इम्बैलेंस होते हैं उसके कारण भी डिजास्टर अकर हो सकते हैं। देन सेवेंथ वन, टेररिज्म, रियॉट्स एंड क्राइम्स रिजल्टिंग इन बॉम्ब एक्सप्लोजन्स, assaults, fire, and accident, all these are also considered as a disaster. Now, disaster are of two main kind, man-made and natural. Now, in this blue chart, we will classify the following disaster as man-made or natural. So there are some disaster. In man-made, we can see fire and leakage of chemical gases, then bomb explosion, collapse of building. These are man-made disaster. While fire, earthquake, storms, flood, tsunami, and war, war nahi, forest fire. All these are natural disaster. Now, the next main point is earthquake. Movement in the interior of the earth release tremendous amount of energy. अर्थ के नीचे वाले पार्ट में जो मूवमेंट होते हैं उससे क्या होता है, बहुत सारी एनर्जी जनरेट होती है एंड रिलीज होती है. दिस causes seismic waves leading to movement of the earth surface like tremors, shaking, cracking up. अब ये जो एनर्जी रिलीज हो रही है ये क्या कर रही है, नीचे से अर्थ के अंदर से अर्थ बाहर जहां पे हम लोग रहते हैं वहां पे निकलने की कोशिश करती है. देन उससे क्या होता है, सेस्मिक वेव्स क्रिएट होते हैं और इनके मूवमेंट से अर्थ के सरफेस में ऐसे शेक होगा या फिर अर्थ क्रैक हो जाएगा, इस टाइप के सिम्टम्स होते हैं. देन सच वाइब्रेशंस और क्रैकिंग इन द अर्थ्स क्रस्ट इज नोन एज अर्थक्वेक. It is believed that besides other causes, man-made causes like mining and construction of big dams can also lead to earthquakes. ओके इनका ये जो अर्थक्वेक होते हैं इनका रीजन क्या है, नेचुरल रीजन तो होते ही हैं बट मैन मेड रीजंस भी होते हैं, लाइक माइनिंग जो हो रही है एंड कंस्ट्रक्शन ऑफ बिग डैम, बड़े बड़े डैम बनाए जाते हैं, उनकी वजह से भी अर्थक्वेक्स हो सकते हैं. देन इफेक्ट ऑफ अर्थक्वेक, destruction of infrastructure, building, bridges, roads, railway tracks, etc. ये सब डिस्ट्रक्ट हो सकते हैं, डिस्ट्रॉय हो सकते हैं. देन चेंज इन द डायरेक्शन ऑफ द फ्लो ऑफ रिवर, रिवर के डायरेक्शन भी चेंज हो सकते हैं अर्थक्वेक की वजह से. देन थर्ड वन इज ह्यूज लॉस ऑफ लाइफ एंड प्रॉपर्टी, लोगों की जान जा सकती है और जो उनके घर हैं, प्रॉपर्टीज हैं उनका, वो सब डिस्ट्रॉय हो सकते हैं. Now the next one is flood. A flood, a frequently occurring natural disaster in all part of the world is floods. Due to excessive rain in the some place, a river overflows its banks causing a flood. जब बहुत ज्यादा रेन होती है तो रिवर्स क्या करते हैं, ओवरफ्लो कर जाते हैं. ओवरफ्लो करने की वजह से नदी के किनारे जो होते हैं ना उनमें बहुत पानी आने की वजह से वो गांव में या शहरों की तरफ पानी बहना शुरू हो जाता है जिससे कि फ्लड होती है वहां पे. द वाटर ड्रेनेज सिस्टम इन बिग सिटीज फॉल्स शॉर्ट व्हेन देयर इज अ हैवी रेनफॉल रिजल्टिंग इन चोकिंग ऑफ गटर्स एंड ड्रेनेज लाइंस. जो भी ड्रेनेज सिस्टम होते हैं बिग सिटीज में वो क्या होते हैं, छोटे पड़ जाते हैं उस फ्लड के आगे व्हेन देयर इज अ हैवी रेनफॉल. एंड उसका रिजल्ट क्या होता है, जो भी गटर्स या ड्रेनेज लाइंस होते हैं ये सब चोक हो जाते हैं, उनमें कचरा फंस जाता है, वो बंद पड़ जाते हैं. वाटर ओवरफ्लोज ऑन टू द रोड्स एंड सराउंडिंग एरियाज एंड इवन एंटर्स नियर बाई हाउसेज. फिर वो जो फ्लड का वाटर है वो कैसे होता है, रोड पे जाएगा, आसपास के एरियाज में जाएगा, लोगों के घरों में जाएगा, तो सब जो भी चीजें हैं वो सब डिस्ट्रॉय हो जाएंगी. नाउ इफेक्ट ऑफ फ्लड, ह्यूज लॉस टू लाइफ एंड प्रॉपर्टी. फर्स्ट लॉस क्या है, फर्स्ट इफेक्ट क्या पड़ता है, लोगों की जान जा सकती है, पानी में डूब के लोगों की जान जा सकती है. देन प्रॉपर्टी का लॉस हो सकता है. सॉइल इरोजन, सॉइल इरोजन को हम लोग हिंदी में क्या बोलते हैं, मृदा अपर्दन, लाइक जहाँ पे जो मिट्टी होती है, लैंड होती है, वो सब खिसकने लगती है, वीक पड़ जाती है. देन डिस्ट्रक्शन ऑफ
स्टैंडिंग क्रॉप्स, जो भी क्रॉप्स हमने उगाए थे वो क्या होते हैं, डिस्ट्रक्ट हो जाते हैं, डिस्ट्रॉय हो जाते हैं. देन द लास्ट वन इज आफ्टर इफेक्ट ऑफ फ्लड्स लाइक स्प्रेड ऑफ डिजीजेस एंड एपिडेमिक्स अफेक्टिंग द हेल्थ टू द पीपल. जो फ्लड्स आते हैं इनके आफ्टर इफेक्ट मीन्स फ्लड से लोग जब जो बच जाते हैं लोग फ्लड आने के बाद, और जो भी सामान रहता है वो उन सब पे अब किसका अटैक होता है, डिजीज का, लाइक पेंडेमिक, एपिडेमिक्स, ये सारी प्रॉब्लम्स शुरू हो जाते हैं. नाउ द नेक्स्ट वन इज स्टॉर्म. द फॉर्मेशन ऑफ हाई एंड लो एयर प्रेशर belts in the atmosphere causes changes in weather resulting in strong winds or storm. अब यहाँ पे क्या बता रहे हैं, एयर प्रेशर जो होता है वो कैसे लो और हाई हो सकता है. इनके लो और हाई होने की वजह से एटमॉस्फेयर पर प्रेशर बढ़ता है जिसके कारण स्ट्रॉन्ग विंड, तेज हवाएं चलती हैं जिसे हम लोग स्टॉर्म भी बोलते हैं. इफेक्ट ऑफ स्टॉर्म्स, ग्रेट डैमेज इन द स्टॉर्म अफेक्टेड रीजन. जिस एरिया में स्टॉर्म आता है वहां पे बहुत बड़ा नुकसान हो सकता है. ट्रिमेंडस लॉसेस टू लाइफ एंड प्रॉपर्टी. कोई भी डिजास्टर होता है तो उससे एक मेन इफेक्ट क्या होता है, लोगों की जान जा सकती है और उनकी जो सामान है, प्रॉपर्टी है, उसका लॉस हो सकता है. देन डिस्ट्रप्शन ऑफ इलेक्ट्रिक सप्लाई. इसकी वजह से जो घरों में इलेक्ट्रिसिटी होती है वो भी बंद पड़ जाएगी. डिस्ट्रप्शन ऑफ ट्रांसपोर्ट एंड कम्युनिकेशन. ट्रांसपोर्ट टोटल बंद हो जाता है एंड कम्युनिकेशन भी बंद हो जाता है बिकॉज विंड इतने स्ट्रांग होते हैं कि उससे जो भी कनेक्शन है वो सब टूट जाते हैं. क्लियर. देन फॉरेस्ट फायर. A forest fire is an uncontrolled fire in a forest, pasture or grassland due to natural or man-made causes. Forest fires spread at a tremendous speed. And the effect of forest fires are great damage to natural wealth and biodiversity, pollution of air. देखो फॉरेस्ट फायर कैसे होते हैं, नेचुरल भी हो जाते हैं कई बार एंड कई बार मैन मेड कॉजेज होते हैं इनके पीछे. एंड ये कैसे होते हैं, फॉरेस्ट फायर बहुत ही स्पीड से पूरे फॉरेस्ट में स्प्रेड हो जाती है. इफेक्ट क्या होता है इसका, जो भी बायोडाइवर्सिटी है, हमारे प्लांट्स हैं एंड एनिमल्स हैं जो फॉरेस्ट में रहते हैं, वो उनको उनकी लाइफ फिनिश हो सकती है. नेचुरल वेल्थ का डैमेज हो जाता है और एयर पॉल्यूशन इंक्रीज हो जाता है. सो दीज आर ऑल द डिजास्टर. सम आर natural and some are man-made. In the next video, we will cover disaster management and some other points. Okay, so this is today's video. If you have any doubt, then you can ask me in the comment box. And if you understand this chapter, then like the video and share it with your friend. Thank you so much.